Hello friends, welcome back to my channel RK BioHub, a complete biological solution for class 11th and 12th। जैसे हमने स्टडी किया सेल के बारे में, सेल थ्योरी के बारे में, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल, a most important topic in examination point of view। देखो ये एक चैप्टर ऐसा है जो कि आपको सिर्फ बायोलॉजी में नहीं, इवन कि आपके जितने भी इंट्रेंसेस एग्जाम्स हैं उनमें इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पुट अप होता ही होता है। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल। जैसे ही डिस्कवरी हुई सेल की, उसके बाद काफी ज्यादा डिस्कवरी स्टार्ट हो गई ऑन फोकस टोटली ऑन सेल के ऊपर। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सो मेनी टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज, they are divided into two parts. One, the bacteria which are very ancient, they are known as primitive, PR, and another bacteria are advanced. Now जैसे अब हमारी साइंस ने क्या क्या कहती है, as evolution starts, the first cell comes on the earth is primitive, and this cell is known as prokaryotic cell, a cell which is a primitive cell, और जो इस अर्थ पर कब से पाया जा रहा है 3.5 मिलियन ईयर्स। जब से इस अर्थ के ऊपर लाइफ शुरू हुई है तब से ये सेल है, तभी हम इसे क्या बोलते हैं, primitive cell. So on the basis of structure of a cell, on the basis of nuclear material present in the cell, on the basis of the cell membrane of the cell, cells are divided into two main parts. One is known as prokaryotic cell, and another is eukaryotic cell. The difference of the cell, that is prokaryotic cell and eukaryotic cell, is totally based upon the nuclear material present of the cell organelles and the membrane of the cell. Basically it is totally depend upon, जो डिफरेंस हम कर रहे हैं, जो डिफरेंस है सेल का, ये बेसिकली दो ही पार्ट में डिवाइड है, दो ही वजह से है। वन इज न्यूक्लियर मटेरियल, एंड प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। तो डियर फ्रेंड्स, टुडे हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, द वेरियस इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। नाउ जैसे मैंने टाइम बचाने के लिए, वीडियो को थोड़ा छोटा करने के लिए पॉइंट्स पहले ही लिखे हैं, तो हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। देखो, जैसे इस अर्थ के ऊपर लाइफ शुरू हुई, जो सबसे पहले सेल आया मैंने आपको भी बताया, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। इसका मतलब इसमें इतनी ज्यादा एडवांसमेंट नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है, और इसमें बेसिकली हमने जो फर्स्ट कैरेक्टर लिया है वो क्या लिया है, न्यूक्लियर मटेरियल। नाउ इन न्यूक्लियर मटेरियल मींस प्रेजेंस ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। देखो जो जेनेटिक मटेरियल किस में पड़ा है, न्यूक्लियर मटेरियल जो प्रोकैरियोट्स में पड़ा है, सिंपल, नेक्ड। The chromosomes are naked, circular and present in the center without a covering of nuclear membrane। इसके ऊपर देखो, हम फर्स्ट स्टडी कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मटेरियल। न्यूक्लियर मटेरियल क्या है, इसमें न्यूक्लियर मटेरियल है दिस शेप, ये क्या है, नेक्ड
without the covering of histone proteins, nuclear membrane is absent. So the main definition of the prokaryotic cell is that cell whose chromosome is naked and without the nuclear membrane. We can't say that nucleus is absent. In so many books ये लिखा हुआ है कि nucleus is absent, but it is totally wrong. The prokaryotic cell are those primitive cells which lack nuclear membrane. They have the nuclear material, and the nuclear material is totally naked without any type of protein, as we know that the chromosomes of our cells are covered by histone proteins, but इसमें कोई भी ऐसी प्रोटीन नहीं है. First characteristic क्या है? Nuclear material. In the prokaryotes, the nuclear material is naked without a covering of histone proteins and without a nuclear membrane. These are also known as genophore. Genophore means a chromosome material, a nuclear material without a covering and without the nuclear membrane. Or we are also say that nucleoid. So is it clear? First point, prokaryotic cells have nuclear material in the form of a naked chromosome, a circular naked chromosome present in the center. Now मैं एक रफ में डायग्राम भी ड्रा कर लेते हैं हम. जैसे से मैं समझाते जाऊंगा वैसे वैसे हम इसको आगे. दिस इज अ सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट इन द सेंटर नेक्ड. नाउ इसके साथ ही कुछ प्रोकैरियोट्स में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम भी देखा गया है विच इज नोन एज प्लाज्मिड. इसे हम क्या बोलते हैं? जब आप इसकी डायग्राम ड्रा करोगे तो कोई स्पेसिफिक डायग्राम नहीं ड्रा करनी है आपने. जब आपको स्पेसिफिकली नहीं पूछा गया है, कोई स्पेसिफिक प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में नहीं पूछा गया है, तो आपने एक जनरल डायग्राम ड्रा करनी है. और डायग्राम फ्री हैंड क्या किया हमने? एक बीच में ड्रा कर दिया nuclear material, circular, and another plasmid which is attached with the cell membrane. Is it clear? Now, and the function of this plasmid is that they have some extra characteristics, or we can say that इसके पास कुछ अलग, कुछ थोड़े से एक्स्ट्रा फैक्टर्स होते हैं जो इसमें नहीं होंगे. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो इसके पास नहीं होंगे. एज फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन फिक्सिंग, एज फॉर एग्जांपल हैव सम रेजिस्टेंट जीन्स. इज इट क्लियर? आफ्टर दैट अनदर इज सेल वॉल. एज फॉर एग्जांपल द प्रोकैरियोटिक सेल्स, a blue-green algae, cyanobacteria, a bacteria which have a process of photosynthesis. For example, nostoc. After that, bacteria, all the bacteria are the prokaryotes. PPLO. Now, इस वर्ड को याद रखना जो आपको लाइफ में हर जगह काम आएगा. PPLO, it is the smallest living organism present on earth. A smallest cell present on earth, PPLO, pneumonia like organism. After that, mycoplasm and archaebacteria. These are some examples of the prokaryotic cell. Those cells which lack nuclear membrane, which have the genetic material but in a naked form. So for examples मैंने आपको बता दी कुछ.
For example, blue-green algae, prokaryotes, but having some characteristics of the photosynthesis. Cyanobacteria, for example, nostoc. Cyanobacteria is a type of bacteria having a photosynthetic properties. They have photosynthetic pigment, but no chloroplast is present. They have the thylakoids, which we will discuss later on. After that, PPLO. It is the smallest cell on this earth, smallest, and full name is Pleuropneumonia-like organism. After that, mycoplasm. After that, archaebacteria. These are some examples of the prokaryotic cell. Clear? After prokaryotic cell के जेनेटिक मटेरियल के बाद जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो क्या है? सेल वॉल. सेल वॉल जो है ये सभी के सभी प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट है एक्सेप्ट पीपीएलओ, प्रेजेंट इन ऑल प्रोकैरियोट्स एक्सेप्ट पीपीएलओ. अभी समझाया, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. आफ्टर दैट फ्लैजिला और फिम्ब्रे. Now, bacteria have a flagella-like structure, or we can say that a thread-like structure which come out of their cell wall, and this is they may be present, they may be absent, they may be single or in a group. It depends upon the type of the bacteria, type of the prokaryotic cell. It helps in the, just we can say that it helps in the movement. आप कह सकते हो कि लोकोमोशन में ये हेल्प करता है. कैसे करता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक इसके बारे में स्टडी करेंगे. फ्लैजिला और दे हैव फिम्ब्रे. सम प्रोकैरियोट्स हैव a structure known as pili. Pili is just this type of structure, maybe 1, 2 or 3, and its main function is to attach the other prokaryotes with one cell with the another cell. Pili, and in some books it is written as sex pili. These are not flagella, but they are just like the flagella, and its main function is the attachment with the another prokaryotic cell. ये क्या है? एक पिलाई क्या है? एक सेक्स पिलाई बोलते हैं, कई बुक्स में इसके सेक्स पिलाई भी लिखा गया है. इसका काम है अटैच करना एक प्रोकैरियोट को दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, दूसरे प्रोकैरियोट के साथ. इसका भी फंक्शन जो है वो प्रॉपर नहीं क्लियर है बिल्कुल भी. आफ्टर दैट फोटोसिंथेटिक थैलाकोइड्स. एज मैंने आपको पहले डिस्कस किया कि सम प्रोकैरियोट्स हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ दे कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इट मींस उनमें क्या है? कुछ प्रॉपर्टीज है किसकी? प्लांट्स वाली, कि वो अपना खाना प्रिपेयर कर देते हैं. दे हैव पिगमेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. पिगमेंट इज क्लोरोफिल, but chloroplast are absent. क्लोरोप्लास्ट तो है बट क्लोरोफिल इज absent, और उसकी जगह पर क्या है इनके पास? थाइलाकॉइड्स है. दे आर प्रिमिटिव क्लोरोप्लास्ट. बाद में क्लोरोप्लास्ट डेवलप हुए, बट पहले क्या था? थाइलाकॉइड. ए स्मॉल बॉडीज विच आर प्रेजेंट नियर द सेल वॉल, इनर साइड ऑफ द सेल वॉल, जिसमें क्या बड़ा हुआ है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बनी हुई है. उससे हम देखो, ये है ना, यहां पर क्या है? थैलाकॉइड्स. After that, cell organelles. Now, most of the cell organelles are absent. Most of the organelles are absent. प्रोकैरियोट्स में मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गन्स क्या है? absent है. ना तो इसके बीच में माइटोकॉन्ड्रिया है, ना गोल्गी बॉडीज है,
ना एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ना ही बाकी आपकी बोल सकते हैं हम इसमें बेसल बॉडीज हैं। सिर्फ है तो क्या, राइबोसोम्स। सिर्फ क्या है, राइबोसोम्स है। उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, वैक्यूल्स। सम बैक्टीरिया हैव वैक्यूल्स बट दीज आर गैस वैक्यूल्स। हम बहुत छोटी वैक्यूल्स की कई बैक्टीरिया में देखी गई हैं। वैक्यूल्स क्या होती हैं बच्चों? वैक्यूल्स होती हैं छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट विद इन दी सेल। और इनमें क्या है, कुछ बैक्टीरिया में वैक्यूल्स देखी गई हैं, दीज आर दी गैस वैक्यूल्स। उनका फंक्शन क्या है वो भी प्रॉपरली क्लियर नहीं है। आफ्टर दैट राइबोसोम्स। नो, प्रोकैरियोट्स हैव राइबोसोम्स बट राइबोसोम्स आर अगेन ऑफ primitive type. The ribosomes are of 70s type. Ribosomes जो basically two types के होते हैं, one is 70s and another is 80s. But इसके बीच में कौन से है? 70s. The advanced ribosomes are 80s which are present in our body and the main function of the ribosome is protein synthesis. जैसे ही हम टॉपिक आगे बढ़ते जाएंगे हम ये क्लियर करेंगे कि प्रोटीन सिंथेसिस क्या होती है, राइबोसोम्स कैसे प्रोटीन सिंथेसिस करता है। After that, one enveloped system. So this system, one enveloped system is present in prokaryotes, and one enveloped system means a single layer of a membrane. A single membrane which covers the cell, but a nuclear membrane is absent, cell organelles are absent, and most of the cell membranes are absent except outer cell wall is present. Is it clear? So it is known as one enveloped system. They have only a single envelope which cover the cell from the outer side, and most of the nuclear membrane and other membranes are absent in it. Cyclosis. Cyclosis is a very important term. It means streaming movements. साइटोप्लाज्म के बीच में देखो, जो साइटोप्लाज्म है ना वो कंटिन्यूसली क्या करता रहता है, साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट्स आर नॉट प्रेजेंट। देखो हमारे सेल्स में जो साइटोप्लाज्म है, जो लिविंग मटेरियल है विद इन द सेल, वो कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। जैसे आप देखते हो ना हलवाई की दुकान पर, वो दूध से खोया बनाने के लिए दूध को हिलाता रहता है ताकि दूध नीचे ना लग जाए। वैसे ही हमारे भी जो साइटोप्लाज्म है उसमें मूवमेंट्स कंटिन्यूसली होती रहती हैं। और क्यों होती हैं, क्या होता है, वो हम इसमें बीच में नहीं जाएंगे, वो मैं आपको एक अलग टाइपिंग में बताऊंगा। साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट्स क्या होती हैं, स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स क्या होती हैं। बट सिंपल याद रखिए आप कि इसमें साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट्स जो होती हैं वो अब्सेंट होती हैं, आर नॉट प्रेजेंट, आर अब्सेंट। Next, reproduction. Same, reproduction is of primitive type. It means sexual reproduction is totally absent in prokaryotes. इसमें sexual reproduction नहीं होती. Asexual reproduction is present. No sexual reproduction. Only asexual reproduction is present. कौन सी रिप्रोडक्शन इसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू ऑर्गेनिजम्स आर इन्वॉल्व। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये प्रिमिटिव सेल है, इसमें कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज नहीं है, तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, बट ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होगी? वो होगी बाइनरी फिशन। बाई मतलब टू, एक सेल का टू पार्ट में डिवाइड हो जाना। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, हम डिस्कस करेंगे इनकी रिप्रोडक्शन के बारे में। मल्टीपल फिशन, मल्टीपल मतलब बहुत ज्यादा पार्ट में फिशन होता है, टूटना। जब एक सेल बहुत ज्यादा पार्ट में टूट के
अलग अलग ऑर्गेनिज्म बन जाए, अलग अलग सेल बन जाए, उसे बोलते हैं मल्टीपल फिशन। आफ्टर दैट कंजुगेशन। सो दीज आर मेन टाइप्स ऑफ reproduction in prokaryotic cells. After that, exocytosis and endocytosis. In prokaryotic cells, exocytosis and endocytosis is totally absent. अब question rises कि भाई ये endocytosis क्या है और exocytosis क्या है? So these are the very important terms. Exocytosis means exocytosis means to get something within the cell, engulf करना, सेल के अंदर कोई चीज इनगल्फ होना, सेल के अंदर कोई चीज जाना बाय अ पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मीन समथिंग थ्रोन आउट ऑफ द सेल, एक्सोसाइटोसिस मीन टू गेट विद इन द सेल एंड एंडोसाइटोसिस टू गेट थ्रोन आउट ऑफ द सेल। So both exo and endo are absent in it, but it occurs in our all the cells, all eukaryotic cells। वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। नाउ यस, दे हैव द रेस्पिरेटरी एंजाइम्स बिकॉज respiration occur in every living organism, whether it is a prokaryote or the eukaryote। रेस्पिरेशन तो होगी, रेस्पिरेशन होगी तो एनर्जी बनेगी, और इनमें रेस्पिरेशन कैसी होती है? एनएरोबिक, बेसिकली एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है, और उसके लिए एंजाइम्स चाहिए। और एंजाइम्स कहां होती है? इनके एंजाइम्स भी कहां पड़े होते हैं? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। तो बच्चा बाहर आपने क्या ड्रा करना है? सेल वॉल, प्लाज्मिड्स हो गया। ये क्या आ गया आपका? मैंने आपको बताया थाइलाकाइड्स। ये क्या आया? नेक्ड डीएनए, साइटोप्लाज्म, पिलाई लिख लिया आप इसको। These are the gas vacuoles. This is the simple structure of the prokaryotic cell. एक बार रिव्यू करते हैं। A prokaryotic cell is that cell which is a primitive cell which comes on this earth after the life starts on the earth, before eukaryotic cell. They are the primitive cells, और इस सेल को अर्थ पर आए हुए कितनी देर हो गई? 3.5 मिलियन ईयर्स। ये प्रिमिटिव है, इसका मतलब इस पर कोई भी एडवांसमेंट नहीं है, इसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। न्यूक्लियस जो है, जो न्यूक्लियर मटेरियल है, दैट इज डीएनए और द क्रोमोसोम नेक्ड है, उसके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं है। अनदर एक और पड़ा हुआ है क्रोमोसोम ऑन द साइड, इट इज नोन एज प्लाज्मिड। इसका एक एक्स्ट्रा फंक्शन है, इसमें अलग फैक्टर्स होते हैं, अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अलग प्रोटीन बनाने की जीन्स होते हैं। आफ्टर दैट फोटोसिंथेसिस हमने कौन कौन से किए? न्यूक्लियर मटेरियल, सेल वॉल, फ्लैजिला और फिम्ब्रेई, सेक्स पिलाइज भी होती है। फोटोसिंथेटिक थैलाकाइड्स, फोटोसिंथेटिक क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट। आफ्टर दैट सेल ऑर्गन, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गन्स आर एब्सेंट। vacuoles are only of gas type vacuoles. After that, ribosomes are of 70s types, and one enveloped system, cyclosis, reproduction, exocytosis and endocytosis, and last is respiratory enzymes. I hope you enjoy this topic on prokaryotic cell. Now if you like this topic, please like, share and subscribe, and comment me what to modify on my topics. Thank you and have a good day.